top focus at this hour, Gopal Khemka murder case. Latest developments are coming in. 5 suspects have been taken into custody now. Earlier raids were conducted in Fatua Industrial Area and Ara. And 5 suspects involved in the case now have been taken into custody. The police is still investigating the murder from every angle possible, including the angle of land dispute. Now, along with this, other aspects are also being investigated thoroughly. On Saturday, Beur jail was also raided where notorious Ajay Verma is lodged. Police questioned him in the case for about 20 minutes. Now, police says it has got some leads against the gang. Meanwhile, RJD leader Tejasvi Yadav on Saturday met the family of businessman Gopal Khemka, whose murder in Patna has now rocked and sent shockwaves across the state. The RJD leader called the incident horrible and claimed that it shows how unsafe the state has become at this point. He said that the officers are running the state as the chief minister is unconscious and tired. Now, if I have to give you the context of this story, a well-known businessman in Bihar and the owner of Magad Hospital, Gopal Khemka, was shot dead by unidentified assailants near his home close to Gandhi Maidan in Patna late Friday night. An incident that has now sent shockwaves across the state. And rattled by this very murder and rising criticism over the state of law and order in Bihar, the chief minister of the state reviewed the law and order situation. And along with Bihar Director General of Police Vinay Kumar and other senior officials, they all attended the meeting with the Chief Minister. Now, Nitish Kumar asserted that crime control was the topmost priority of the state government and also issued directions to take strict action against criminal as well as irresponsible police officials. Now I'm being joined by my colleague Rupesh Kumar for this story. Now, Rupesh, 5 suspects have been taken into custody. What more do we know about these latest updates that we're getting in this murder case? देखिए, बिल्कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन शक के बिना पर इनको हिरासत में लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। कुल मिलाकर अभी तक पुलिस के हाथ लगभग खाली है, यानी कि पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी खुलासा करने की स्थिति में नहीं है। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पटना के फतुहा से लेकर के और आरा तक छापेमारी चल रही है। पटना के बेउर जेल तक में छापेमारी हुई है। कल आईजी खुद जेल में पहुंचे थे। वहां अजय वर्मा से भी 20 मिनट तक पूछताछ हुई। पुलिस को कुछ ऐसे लीड्स मिले हैं जिनके आधार पर पटना के बेउर जेल में केंद्रीय कारा है, उसमें छापेमारी की गई और अजय वर्मा से पूछताछ की गई। ये आशंका है कि इस हत्याकांड के तार बेउर जेल से जुड़े हो सकते हैं। वो दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र फतुहा में और आरा में भी छापेमारी की गई। ये आशंका है, पुलिस को कुछ लीड्स मिले हैं कि हत्या की जो साजिश रची गई है वो बेउर जेल से लेकर के और आरा तक में उसके अपराधी हो सकते हैं। तार हाजीपुर से भी जुड़े हैं। हाजीपुर से इसलिए क्योंकि हाजीपुर में भी छापेमारी हुई है और आलोक खेमका, जिनकी मौत हुई है, गोपाल खेमका की हत्या हुई है, उनके बेटे की हत्या भी हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में ही हुई थी। और इसी तरीके से जिस तरह से गेट पर पहुंचते हैं, हॉर्न बजाते हैं और गेट खुलने के बीच का जो गैप है, जो समय अंतराल है, उसी में सर में गोली मारकर हत्या होती है। ठीक इसी तरह से जब इनके बेटे गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका 2018 में जब औद्योगिक क्षेत्र में जहां उनका कॉटन इंडस्ट्री है उसके गेट पर पहुंचते हैं, हॉर्न बजाते हैं, जब तक दरवान गेट खोलता है इसी समय अंतराल में उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसका भी स्पीडी ट्रायल चल रहा है और उसका जो आरोपी था उसको भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उसकी भी हत्या अब हो चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर के देखे, मुख्यमंत्री इतने संजीदा थे। मुख्यमंत्री ने सबकी बैठक बुलाई और कहा कि कड़े निर्देश दिए, गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। पुलिस ने यह दावा किया कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है, उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन अब तक पुलिस के पास बताने के लिए सिर्फ यही है कि कार्रवाई चल रही है, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। किस गैंग ने यह हत्या की है, किस गैंग ने यह हत्या करवाई है, हत्या का मोटो क्या है, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी जो देखने को मिल रहा है वो इनके बेटे की हत्या जिस तरीके से हुई थी उसी तरीके से गोपाल खेमका की भी हत्या हुई है। लेकिन हत्या का उद्देश्य क्या है,
हत्या किसने करवाई, हत्या कराने के बाद किसने सुपारी दी थी, क्योंकि पुलिस को ये भी आशंका है कि सुपारी किलर का काम हो सकता है और जमीन विवाद से जुड़ा मामला है या कोई पुराना जो मामला चल रहा है बेटे की हत्या का, उस मामला से जुड़ा हुआ है, रंगदारी का मामला है। पुलिस अभी तक कुछ भी स्पष्ट बताने की स्थिति में नहीं है कि वाकई जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, उनके बेटे की हत्या से जुड़ा हुआ मामला है या फिर रंगदारी का मामला है या कोई और पुरानी अदावत है और किस गैंग ने छापेमारी की है। पुलिस कार्रवाई जरूर की है। 35 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है, जो सिटी एसपी सेंट्रल है उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। और पुलिस सबसे पहले तो पुलिस पर परिजनों ने ही आरोप लगाया कि पुलिस बहुत देर से पहुंची थी। पुलिस को सूचना दी गई लेकिन पुलिस घटनास्थल पर देर से पहुंची, उसके बाद हॉस्पिटल में पुलिस देर से पहुंची थी। हालांकि अलग अलग स्टेटमेंट हैं। जो पटना के एसएसपी हैं उन्होंने कहा कि पुलिस ही घायल को लेकर के हॉस्पिटल गई थी, जबकि जो आईजी हैं उन्होंने कहा कि 1 घंटे के अंदर पुलिस पहुंच गई थी। लेकिन पटना की हृदय स्थली गांधी मैदान के पास, जहां बगल में जिलाधिकारी का आवास है, कमिश्नर का ऑफिस है, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो रहते हैं, अगर उस इलाके में अगर कोई हत्या होती है, एक बड़े कारोबारी, नामचीन कारोबारी की हत्या होती है और वहां तक पहुंचने में 1 घंटा भी अगर पुलिस को लगता है तो ये एक आपराधिक लापरवाही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री जो विजय सिन्हा हैं वो पहुंचे थे परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाने और उन्होंने कहा था कि निकम्मे पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। यानी कि एक तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ जिन अधिकारियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है, चाहे वो थाना स्तर पर हो या फिर थाने स्तर से ऊपर के स्तर पर अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, उप मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने डीजीपी से लेकर के और तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके ये निर्देश दिया है कि इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। लिहाजा 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है और ये इंतजार है कि पुलिस क्या खुलासा करती है। हाँ जी, नाउ दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के नीतीश कुमार, उन्होंने बोला है कि उनके लिए एक टॉप प्रायोरिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुधरे इस स्टेट में। तो गवर्नमेंट कैसे हैंडल कर रही है सिचुएशन को? देखिए, गवर्नमेंट के लिए सिचुएशन हैंडल करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार लगातार 2005 के बाद से ही ये कहते रहे हैं कि कानून का राज है, सुशासन है, कानून का राज के अंदर पिछले दिनों जिस तरीके से जो अपराध के जो आंकड़े हैं, अगर पुलिस चाहे, पुलिस पे तबादले भी हुए, ये आरोप लगा। अवकाश कुमार जब कुछ दिन पहले तक पटना के एसएसपी थे, उनको इसी बिना पर हटाया गया यहाँ से कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है। मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करते हैं, लेकिन अगर सरकार की हनप हो, सरकार का इकबाल अगर हो और पुलिस मुख्यालय अगर सख्त हो तो बहुत मुश्किल नहीं है कानून का राज स्थापित करना। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, अगर सिर्फ जिस दिन गोपाल खेमका की हत्या होती है सिर्फ उस दिन देखें तो सीवान में 6 लोगों को गोली मारी जाती है, 3 लोगों की मौत हो जाती है, मुजफ्फरपुर में एक हत्या होती है, समस्तीपुर में एक को गोली मारी जाती है। सिर्फ 24 घंटे में अगर देखें तो लगभग आधा दर्जन बड़ी आपराधिक घटनाएं यहाँ पर होती हैं जिसमें गोली मारी जाती है। और एक तरह से नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि सिवान में नरसंहार हुआ, 6 लोगों को गोलियां मारी जाती हैं, 3 लोगों की एक साथ मौत हो जाती है, जिसे नरसंहार तक की संज्ञा दी गई। तो विपक्ष हमलावर है सरकार पर, कानून के राज और ये जो जंगल राज जो एनडीए कहती रही है कि लालू का राज जंगल राज था, अब विपक्ष ये कह रहा है कि यही असली जंगल राज है, नीतीश कुमार का जो शासन है ये जंगल राज है, जबकि सत्ता पक्ष जो